چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے، چلو بغداد چلو غوث پاک کے روزے، بڑے حضرت کی بارگاہ چلو۔ الحمدللہ آج بروز جمعہ 8 سپٹمبر بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ کی حاضری الحمدللہ 3 بجے مالیگاؤں سے روانہ ہو چکے ہیں، دیکھتے رہیں آگے۔ الحمدللہ مالیگاؤں سے لے کر ممبئی تک بارش ہی بارش ہے، اور کلیان چوکڑی پاس کرنے کے بعد اب کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ ممبئی ایئرپورٹ پہنچیں گے انشاءاللہ، اور بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی آج زیادہ ہے۔ اللہ خیر کرے کہ جلدی سے ہم پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے 11:15 بج رہے ہیں، اور اس وقت آپ ممبئی ایئرپورٹ کا منظر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ اس طرف بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے ہماری گاڑی اور یہ ہے ہمارے احباب۔ اس طرف سے ہم نے بیگ وغیرہ بھی نکالا ہے، اور اب اندر جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عبدالرشید بھائی ماشاء اللہ، ابھی صاحب، عامر بھائی ٹیلر، اس طرف دیکھیں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ بورڈنگ کے لیے اس وقت ہم لوگ یہاں پر لائن میں لگے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پر، اور پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ صاحب قبلہ اس طرف عامر ٹیلر۔ بورڈنگ کے لیے ہم لوگ یہاں پر رکے ہیں، اور ہمارا بیگ اس طرف سے یہ ہمارے جمیل بھائی۔ بھیا بغداد شریف کی حاضری ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ بہت ایسا سوچ رہا ہوں کہ جنت میں جائیں گے تو کیسا لگے گا۔ ماشاءاللہ ایکسائٹیڈ لیول کافی ہائی ہے، کہہ نہیں سکتے اپنی فیلنگ، جذبات بتا نہیں سکتے ہم لوگ زبان سے کہ کیا محسوس ہو رہا ہے اس وقت۔ جلدی آؤ نا، جلدی آؤ، جلدی بنا لیا آپ۔ ساری چیکنگ ہو چکی ہے، اور اب فلائٹ کی طرف بڑھتے ہوئے۔ جی الحمدللہ تعالی ہمارا یہ سفر بغداد شریف کی جانب رواں دواں ہے۔ بڑے جیسے جیسے ہم لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور کیف و سرور کی منزلیں طے ہوتی چلی جا رہی ہے، شاید یہ منع کر دیں گے، اور اس کے لیے بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کیف و سرور بالکل بڑھتا چلا جا رہا ہے، جستجو بڑھتی چلی جا رہی ہے بغداد شریف جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ بار بار ادب اور ایمان کے ساتھ آنے کی توفیق۔
اور یہ آ گیا ہمارا 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے مگر بیگ ابھی تک حافظ صاحب پر نہیں رہی کا نہیں آیا. ہمارا پہلے آ گیا. یہ آ گیا میرا بھی آ گیا. آیا آ رہے. ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر وہ کیا بولتے ہیں اس کو پٹے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر وہ بیگ نہیں آ رہا کب سے, اور جو نہیں کھڑے ان کا بیگ آتے چلے جا رہا ہے. یہ ہماری شکایت جو العراق کی یا حکومت کی میں شکایت نہیں ہے. ہم یہ دیکھیے یہ اتنا بغداد ایئرپورٹ سے ابھی باہر نکلے اور یہ ہمارے احباب سید مقیم صاحب, یہ وزیر میاں صاحب, علیم صاحب, نعیم بھائی, دونوں نعیم بھائی, عادل صاحب, نعیم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہوٹل رائل گارڈن سے اب الحمدللہ بارگاہ غوثیت مآب کی طرف, حضور غوث پاک کے دیار کی طرف اب پہلی حاضری دینے کے لیے ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں. اس طرف تمام احباب, اور یہ ہے ہمارا ہوٹل, اور یہ ہے بس. اذان شروع ہو گئی ہے. یہ ہے روڈ انشاءاللہ. حضور سی صاحب قبلہ بس میں موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی حضرت سے بھی ہم کچھ باتیں یہاں کے حوالے سے سنیں گے. ماشاءاللہ بس کی سروس بھی بہت بہتر ہے, ورنہ 48 ڈگری 48 ڈگری یہاں پر گرمی ہے. اگر اتنی سہولت یہاں پر نہیں ہوتی تو حالت خراب ہو جاتی. الحمدللہ آج اللہ کا بے پناہ ہم پہ احسان ہے کہ ہم نے آج سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد, سب ولیوں کی ولی, سارے ولیوں کے سردار, سارے ولیوں کے سلطان, قطب الاقطاب, غوث الاغواث, غیاث القونین, غوث العالمین, سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ بغداد شریف وہ بغداد شریف ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں. ہماری پہلی حاضری غوث پاک کی بارگاہ میں ہے. غوث پاک کی یہ شان آج بھی ہے, اگر کوئی ولی ہوگا اور وہ بغداد شریف آئے گا اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے گا بلا عذر شرعی تو اس کی ولایت چھن جاتی ہے. اور غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جب کوئی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو, غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے میں اس کو مغفرت کی اور جنت کی بشارت دیتا ہوں. آج یہ سعادت بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی. ولیوں میں سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ غوث پاک تقدیریں بدل دیتے ہیں. یعنی آج ہماری تقدیریں بھی انشاءاللہ بدلی جائے گی انشاءاللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سرکار غوث پاک کی شان, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 470 یا 471 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت ایران کے ایک شہر گیلان میں ہوئی جس کو جیلان بھی کہتے ہیں.
सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन पैदा हुए वो शाबान की आखिरी तारीख थी और रमज़ान मुबारक की चांद रात थी। उस दिन से आपने रोज़ा रखा रमज़ान शरीफ का, और आपका बचपने में आपने रमज़ान शरीफ में कभी माँ का दूध नहीं पिया। अगले साल जब चांद नहीं हुआ, गीलान में हुआ या नहीं हुआ इस पर शोर हुआ, तो जीलान के उलमा ने मशवरा किया कि हसनी हुसैनी सादात के घर में एक बच्चा पिछले साल पैदा हुआ जिसने रमज़ान शरीफ में दूध नहीं पिया। चल करके देखते हैं, अगर वो बच्चा दूध पीता है तो समझ लो कि शाबान है, और दूध नहीं पीता तो समझ लो कि रमज़ान है। सरकार गौसे पाक ने बचपन की उम्र में मुर्दे ज़िंदा किए। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि मेरी तरह कोई नहीं है और मैं किसी की तरह नहीं हूँ। इन्नी आलम व माला तालमुन का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में आया है। फरमाते मैं अल्लाह के राज़ों में से एक राज हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में या किसी बारगाह में आप लोग जाएं, इस बारगाह की सबसे बड़ी इबादत यहाँ का अदब है। अदब करोगे बहुत बुलंदी पर जाओगे, बेअदबी करोगे नुकसान उठाओगे, और अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती है। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके नेक बंदों के करीब है। तो खूब मांगे, खूब दुआएं करें, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, बाल बच्चों के लिए भी, पूरी उम्मत के लिए। और सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला की बारगाह में दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा करें। सरकार गौसे आज़म बगदाद मोहल्ला 18 साल की उम्र में तशरीफ़ लाए, और आप आए तो यहाँ के हालात बड़े ख़राब थे। जब आप मदरसे में पढ़ते थे तो खाने की ऐसी तंगी थी कि सरकार गौसे पाक को दरख्त की पत्तियाँ भी खानी पड़ी। अब आप फरमाते हैं कि मुझ पर एक तवील अरसा ऐसा गुज़रा कि लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं लोगों को नहीं जानता था। मैं बगदाद के जंगलात में ऐसी इबादत और रियाज़तें करता था कि मेरे बदन पर कपड़ा भी नहीं होता, एक तहबन होता, मैं नंगे पैर होता, भूखा होता, प्यासा होता। हत्ता कि भूख और प्यास की वजह से मैं ज़मीन पे गिर पड़ता। बगदाद के चरवाहे और लकड़हारे मुझे मुर्दा समझ के उठा कर लेकर जाते, और मुझे गुस्ल देने के लिए जब पानी डाला जाता तो मैं चीख मार करके बुलंद नारा लगा कर उठ खड़ा होता और फिर जंगलों की तरफ पलट पड़ता। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैंने अल्लाह की इबादत में इतनी मेहनतें और रियाज़तें की कि अगर उन आजमाइश को पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए, गौसे पाक का दरबार आ गया। सुभान अल्लाह, वलियों के सरदार की चौखट आ गई। हम सब इंशाल्लाह यहाँ उतरेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग यहीं पर सभी पढ़ेंगे अपने हनफी वक्त के मुताबिक, मगरिब और इशा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह बाकी बातें जब हम लोग जाने लगेंगे तो उस वक्त तो आपको बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए भी और सबके लिए दुआएं करें। उतरना है, आ जाइए। चल सलाम। ये सरकार का मदरसा है, मदरसा कादरिया, अभी भी जारी है वो। ये सरकार गौस पाक का मदरसा है। आइए सब लोग आगे बढ़िए तो कुछ। ये सरकार गौस पाक का मदरसा है जो आपने कायम फरमाया था। वो आप लोगों ने सुना होगा वो रिवायत, जब बगदाद शरीफ के अंदर ताउन की वबा फैली तो लोग बीमारी से मर रहे थे,
تو सरकार ने फरमाया कि जो मेरे मदरसे की घास उखाड़ करके उसको पी लेगा तो उससे शिफा होगी। तो आसपास की यहाँ जितनी घास थी लोगों ने पी और अल्लाह ने सबको शिफा अता फरमाया। ये सरकार गौस पाक का ये मदरसे का दरवाज़ा है, इधर से इसी नियत से गुजरो। सरकार गौस पाक ने फरमाया जो मेरी चौखट से मेरे मदरसे से गुजरेगा मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। इधर से हमें गुजरना इंशाल्लाह। भाई साहब हम लोग जो है इशा के बाद फ़ौरन यहाँ पे इकट्ठा होंगे। इशा के बाद जो है फ़ौरन हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ से एक साथ में बस में जाके होटल में जाएंगे। और कल सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट लगेगा, नाश्ता लगेगा और 8 बजे हमको निकलना है ज़ियारत के लिए सलमान पार्क। कल जो है सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट लगेगा और 8 बजे ज़ियारत के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद सलमान पार्क से वहाँ से खाना खाने आ जाएंगे खाने, और उसके बाद जुनैद बगदादी में हजरत जुनैद बगदादी। अच्छा, और फिर कल यहाँ हाज़िरी कब होगी? शाम को, असर के बाद शाम। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। गुलाम गौस है आज़ाद कर दिया तुझको, गुलाम गौस है आज़ाद कर दिया तुझको, ये मुझसे कब्र में मुनकर नकीर कहते हैं। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। न मैं हुकूमत मांगूं ताजे शाही न मांगूं, न मैं हुकूमत मांगूं ताजे शाही न मांगूं, मांगू तो किसके दर से तेरा फकीर होके, मांगू तो किसके दर से तेरा फकीर होके, गौस सखावत तेरी, गौस सखावत तेरी सबसे बेनज़ीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सब। ये सरकार के शहजादों का मज़ार है। ये सरकार सैयद अब्दुल जब्बार और ये सैयदी सरकार सैयद सालेह, इन्हीं की निस्बत से वो सरकार गौसे पाक को अबू सालेह भी कहते हैं। और ये सरकार गौस पाक के शहजादे हज़रत अब्दुल जब्बार। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, आपको एक सांप जैसी कोई चीज़ नज़र आएगी। सरकार की करामतों में से करामत ये है कि जिन्नात सांप की शक्ल में आया था तो आपने उसको कत्ल फरमाया था, तो उसको कैद करके अभी भी यहाँ रखा गया है, वो आपको नज़र आएगी यहाँ पर। ये देखिए, ये सरकार का आस्थाना है पूरा, और उधर वो जो सब बना हुआ है वो सब ज़ायरीन के लिए रुकने के लिए, उर्स में या और भी लोग जो आते हैं यहाँ क़याम करने के लिए, सब इंतज़ामात है कमरे के। और उधर सामने जो वो सरकार का लंगर खाना है जो सरकार ने कायम फरमाया था, अभी तक वो सिलसिला लंगर का जारी है और मेरे ख्याल से अभी भी वहाँ पर लंगर तकसीम होता है। दो मतलब होता है सुबह 10 बजे। अभी भी सरकार के लंगर की बरकत ये है कि अगर कोई यहाँ का चावल या दाने यहाँ से लेकर जाएं
तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो अनाज में बरकतें देता है। सरकार की ज़िंदा करामत अभी भी ये है। और जो है वज़ू करना हो, वॉशरूम जाना हो तो बिल्कुल सामने मीनार के पीछे एक गेट है, वहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स का दोनों अलग अलग है। और यहाँ पर एंट्री जो है लेडीज़ की यहाँ से है और जेंट्स की यहाँ से है। अभी नमाज चालू है तो हम लोग जो है बाहर बैठेंगे, क्योंकि जो है ना तो अभी नमाज के बाद आस्थाना खुलेगा। भाई ज़माने में अगर देखी सुभान अल्लाह तो शाने कादिरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी। हकीकत खुल गई जब सरज़मीं बगदाद की देखी। दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखा। दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। दयारे गौस क्या देखा, दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, हाथ उठा के या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। खुदा के फजल से गम पर है साया गौसे आज़म का। ठीक है, खुदा के फजल से गम पर गए साया गौसे आज़म का। हमें